नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आईपी के आंकड़े थोड़ी देर में आने वाले हैं और सीपीआई के आंकड़े आए हैं। जून में सीपीआई महंगाई जो है 5.76 से बढ़कर पहुंच गई है 5.8%। अनुमान यही था कि बिल्कुल फ्लैटिश एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक हल्का सा इजाफा जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि फ्यूल प्राइसेस पे कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिली थी, उसका एक इम्पैक्ट इस समय आता हुआ नजर आया। पर अब देखना होगा कि दालों की महंगाई, खासतौर से जो फूड इन्फ्लेशन है वो कितनी बढ़ती हुई नजर आई है और रूरल इन्फ्लेशन के फिगर्स क्या हैं। लेकिन जो कंबाइंड इन्फ्लेशन है जून महीने में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो बात करें तो 5.76% से बढ़कर 5.8% हुई है। हमारा एस्टिमेट भी यही था कि 5.76% के आसपास, यहाँ इनफैक्ट हमारे एस्टिमेट्स में जो अनुमान था वो भी इसी के आसपास था कि 5.8% रहेगी और बिल्कुल सटीक अनुमान 5.8%, 5.76% से बढ़कर। मेरे साथ इस समय शिवम चक्रवर्ती जी जुड़े हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट एचडीएफसी से। मिस्टर चक्रवर्ती, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, 5.8% का आंकड़ा, क्या लगता है कि एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है? Yeah, I think actually we had expected a slightly higher number at about 5.93%. I think the 5.8% increase is, I will wait for the details, but it's perhaps reflecting continued uptrend in food price inflation, specifically vegetable prices. Pulses have sort of are likely to remain fairly flat. And the important point to look at is whether the other components such as core, the miscellaneous index and the core elements, whether they have remained stable. If that is the case, then what it does point out that once the monsoon effect sort of starts to pan out and starts to push food inflation lower, the CPI inflation index could over the course of the year move towards the 5% mark. यही मैं आपसे पूछने वाला था कि जो मॉनसून का जो अभी करंट एस्टिमेट है उसके हिसाब से जो फूड इन्फ्लेशन है, खासतौर से दालों की और सब्जियों की महंगाई दर, आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, किस ट्रेजेक्टरी में जा सकते हैं सर इस बार के फिगर्स और अगले कुछ महीनों में? So we have CPI food and beverages at about 7.37%. I think this month there is also a slight base effect in the food index, so the uptrend may not be that much as what you've seen in the previous month, from 7.2 in the previous month. Our sense is that over July to August, perhaps it remains fairly elevated between the 7.0 to 7.6, 7.7% range, and then gradually moderates as in month of July and August you see better monsoon, and sort of that results in that has a more beneficial effect on crops which have sort of average sowing area has fallen by 20% year on year. So there is some improvement there, and it could perhaps move lower to about 6 to 6.5% in the second half of the fiscal year. चलिए, इनफैक्ट ये 5.8% का आंकड़ा देखना होगा कि अब यहाँ पर बारीकियां क्या निकल के आती हैं और यहाँ पर इंट्रिकेसीज क्या हैं। लेकिन आईपी ग्रोथ -0.3% रहने का अनुमान है मई में। अप्रैल में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई थी। मिस्टर चक्रवर्ती, आईपी फ्रंट पे आपका क्या एस्टिमेट्स हैं सर? Yeah, just checking, it's fallen by -0.8%. Yeah, it was -0.8%. 0.8% की गिरावट मैंने कहा, -0.8% थी पिछले महीने में। इस बार भी कोई खास एनकरेजमेंट नहीं है, -0.3%. Yeah, so it's fallen by 0.8%. Yeah, I think we were at about a contraction of a 0.2%. I think what it sort of does highlight the two things to keep in mind. One is that the real driver of IIP, if you like, over the last 3-4 months has been the core sector, which has shown some dip this month. The other fact is that you have other elements such as rural demand is fairly weak, private capex is weak. The public capex cycle, at least in the IIP figures, is not sort of showing up, and that has sort of kept it fairly depressed. Going forward, we think that there is prospect of an improvement in the IIP reading. Urban consumption is a bright spot and will remain the case given that monetary policy is fairly accommodative. That will perhaps be buttressed by a pickup in rural consumption, rural demand in the second half of the fiscal year, and at some point the public capex plans will sort of start to show up in the core components such as electricity, for instance, and there could be some improvement there. Other thing to keep in mind is that this IIP series is a slightly outdated series. It has a base year 2004-05, so perhaps it is underrepresenting the basket or the performance of the industrial sector. And I think a new IIP is due to come out next month or a month after that,
and there could be minor upward revisions. Nothing that suggests that growth is taking off, but minor upward revisions. And so that's something to just sort of watch out for. That this IIP series is perhaps not the best representative of what's happening on the ground. Not that growth is picking up, but perhaps growth rate might be anywhere between 0.5-0.6%. instead of negative 0.8%. लेकिन आंकड़ा आया इस बार, और आईआईपी ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो है 1.2%। ये तगड़ा आंकड़ा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो एस्टिमेट्स थे और ज़्यादातर जो रिसर्च हाउसेस के एस्टिमेट्स जी बिजनेस ने, रिसर्च टीम ने देखे थे और उसके बाद एक फाइनल एस्टिमेट तैयार किया, उसमें फिगर आनी थी -0.3% की, लेकिन जो आंकड़ा आया है मई महीने में वो है 1.2%। मिस्टर चक्रवर्ती, आप क्या कहेंगे, ये क्या सरप्राइजिंग आंकड़ा है 1.2%, और ये -0.8% के मुकाबले है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वैन बाय बेसिस पे 2.5% से घटकर 1.2% जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बहुत तगड़े आंकड़े आईआईपी के। Yeah, I think as I had sort of indicated, yes, the 1.2% is a very disappointing reading, and perhaps it is a reflection of the fact that on the growth is sort of still fairly modest, and you really have a leveraged consumer spending that is the main driver so far. Like I said, going forward, we sort of anticipate some improvement. This IIP series is fairly volatile, and so you see huge swings, and most of the last sort of 6 to 7 months, the data prints have been completely out of sync with our expectations and the consensus expectations. But I think the overall picture is, as far as the growth front is concerned, is that overall growth is fairly modest, and you're still waiting for the rural push to feed in, and also perhaps some traction in the public capex cycle. And I'd sort of wait for the details. I would suspect capital goods again fell quite sharply. राइट, वो कैपिटल गुड्स का आंकड़ा भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो अभी हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे उसमें मैं एरर रेक्टिफाई करना चाहूँगा। आंकड़ा 5.77% आया सीपीआई महंगाई का, 5.76% के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं 5.77% रिटेल महंगाई दर रही है। मॉडरेटली यहाँ पर इंक्रीज जो है महंगाई पे देखने को मिला है, लेकिन आईआईपी फिगर्स आई है 1.2%। टीएस हरिहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के। हरिहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, वही बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो जानकार थे वो -0.3% -0.2% का एस्टिमेट लगाए हुए थे, लेकिन आंकड़ा है 1.2%। मॉडरेट ग्रोथ ही सही, लेकिन फिर भी आईआईपी के इस बार के आंकड़े मई महीने के आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, खास करके इसका कंपोनेंट्स थोड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा, बिकॉज आप पिछले महीने देखोगे तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, और क्योंकि कोर सेक्टर एक्चुअली हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 8.5 to 2.5, मैं मानता हूँ कि शायद से मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। आई डोंट नो, नंबर्स देखना पड़ेगा, बट यदि मैन्युफैक्चरिंग में स्लाइट इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो आई थिंक इट कुड बी अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन एज अ ग्रीन शूट, तो आई थिंक दैट कुड बी अ पॉजिटिव। अदरवाइज आई थिंक 1.2 इट कुड बी अ मंथली एबरेशन, तो खास इस पे कोई क्या बोलते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करना मुश्किल है, पर मेरा अनुमान है कि शायद से मैन्युफैक्चरिंग में एक स्लाइट इंप्रूवमेंट हुआ कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। राइट, लेकिन अब जो कंबाइंड इन्फ्लेशन फिगर है वो है 5.77% की, और रूरल इन्फ्लेशन जो है वो 6.45% से घटकर 6.2% हुई है। अर्बन इन्फ्लेशन बढ़ी है 5.26%, 4.89% से। मिस्टर चक्रवर्ती, रूरल इन्फ्लेशन में ड्रॉप है सर, लेकिन जो अर्बन इन्फ्लेशन है दैट इज 5.26%। ये इन्फ्लेशन का ट्रेंड आप गोइंग फॉरवर्ड फिर पूछूंगा कि कैसे देखते हैं, तब जबकि यहाँ पर वेजिटेबल प्राइसेस और साथ ही साथ जो दालों के भाव है उन पे एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। Yeah, so as I was saying, I think CPI inflation overall trajectory, if you look at the drivers of CPI, it's really food inflation that is sort of driving the incremental increases. Specifically, it's vegetable prices. Pulses inflation is fairly elevated, but it is sort of flat and likely to moderate gradually. I think the vegetable price effect and the other elements, such I think fruits and so on, that could perhaps moderate going to the second half of this year. The core elements of inflation have remained fairly flat. It's unlikely to move significantly lower, but remain fairly flat. And so overall, CPI inflation trajectory should be lower over the course of the year, where it sort of moves to 5% towards the end of the fiscal year. राइट, अब मेरे पास बारीकी आ गई है माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ। अब आईआईपी पे फोकस करते हैं। 1.2% तो मेन आंकड़ा है आईआईपी का मंथ ऑन बेसिस पे, लेकिन माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी का प्रदर्शन देखते हैं। माइनिंग सेक्टर 1.3% की ग्रोथ देके गया 1.4% के मुकाबले मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। मैन्युफैक्चरिंग -3.1% से बढ़कर 4.7% हुआ है।
मिस्टर चक्रवर्ती 4.7% का आंकड़ा है, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 6% से घटकर 4.7%। माफ कीजिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का आंकड़ा है 4.7%, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में तगड़ा ड्रॉप है मंथ ऑन बेसिस पे। 14.6% से घटकर 4.7%। मिस्टर चक्रवर्ती, इलेक्ट्रिसिटी इतना डिसअपॉइंट करके गया इस बार, व्हाट आर द की रीजंस? I think this is just an aberration. I think the electricity and the core sectors will sort of remain the main drivers. I think you have increased public support through public capex program will remain sort of fairly much in place. So I think this 4.7 reading is a bit of an aberration and would expect a bounce back going into the next sort of upcoming months. Mr. If you look at power generation, so on, there has been an improvement overall in this sector. Sorry. राइट, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो आंकड़ा है वो है 0.7%। मिस्टर हरियर, -3.1% के मुकाबले 0.7% की ग्रोथ दिखाई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। मैन्युफैक्चरिंग पे अभी भी उतना पिकअप नहीं है सर, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पे पिकअप नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट करेगा आईपी में, क्योंकि बहुत तगड़ी वेटेज जो मैन्युफैक्चरिंग कैरी करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप देखते कैसे हैं, मार्केट पर्सपेक्टिव से भी और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी? जैसे मैंने कहा, हमारा अनुमान यही था कि शायद एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज बाकी कोई सेक्टर्स में हम खास इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ। देखिए, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सवाल है, हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि जब भी कैपिटल साइकिल में एक रिवाइवल आता है तभी आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यू गेट टू सी अ रियल इंप्रूवमेंट। आज की तारीख में ऐसा है कि लगभग इंडियन कंपनीज आर ऑपरेटिंग एट अबाउट 68 to 69% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल साइकिल रिवाइवल की जो चांसेस है वो काफी कम है। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग टिल देन शायद से इट विल बी डिसअपॉइंटिंग, और मैं मानता हूं कि यही लेवल पर रहेगा जब तक कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता। मिस्टर चक्रवर्ती, आपके कमेंट्स सर, मैन्युफैक्चरिंग का जो आंकड़ा है 0.7% की ग्रोथ, क्या ये एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले है, और ये क्या डिमांड सिचुएशन अभी उतनी इंटैक्ट नहीं है अर्थव्यवस्था में? क्योंकि पिछली बार का आंकड़ा था -3.1%, इस बार मार्जिनल इंक्रीज है 0.7%, इसको आप कैसे देखते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से? So I think -3.1 to 0.7 is a fairly modest sort of improvement. Yes, it's mildly positive this month, but I think as the previous guest also mentioned, I think you have private capex that is fairly weak, and sort of that is one of the reasons why manufacturing output has remained fairly weak. And over time, once perhaps consumer demand, and I'm talking about urban and rural, sort of shows traction, over time you will see that getting reflected in the manufacturing numbers going forward. On balance, it's nothing to necessarily get that excited about. It's a fairly modest pickup. मिस्टर हरियर, कैपिटल गुड्स के ऊपर जहां पर मैं बात कर रहा था, अब वो आंकड़ा है -12.4% की ग्रोथ है। मैं बारीकियों में पहुंच रहा हूं, अब एक एक सेगमेंट को टटोलने की कोशिश करते हैं। कैपिटल गुड्स की ग्रोथ इस बार भी बहुत धीमी है, -12.4%, पिछले महीने थी -24.9%। कैपिटल गुड्स पिकअप नहीं कर रहा है, रिजल्ट सीजन ऑन है, L&T BHEL जैसी कंपनी नतीजे पोस्ट करेंगे, कैपिटल गुड्स पे इतना एक्टिविटी पिकअप क्यों नहीं हो पा रही है? इस बार भी जो ग्रोथ है दैट इज इन नेगेटिव टेरिटरी। ये 2-3 मूल कारण हैं। एक तो जहां से कैपिटल गुड्स के डिमांड मैक्सिमम आता है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में ग्लोबली इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो रही है। हालांकि इंडिया इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट अ वेरी बिग सम ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, बट आई थिंक फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हुआ है। तो जब तक ये ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होते, आई थिंक इनके ऑर्डर बुक्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, और जब तक कंपनीज लाइक BHEL एंड L&T डोंट हैव इंप्रूवमेंट ऑर्डर बुक पोजीशंस, मैं मानता हूं कि आपको ये जो कैपिटल गुड्स का नंबर है वो शायद से इट विल बी डीप इन द नेगेटिव। शायद बेस इफेक्ट से थोड़ा डिफरेंसेस आ सकता है, बट इट विल एसेंशियली बी डीप इन नेगेटिव। तो जब तक मेजर सेक्टर्स लाइक पावर, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू नहीं होता है, आई थिंक कैपिटल गुड्स डेफिनेटली विल रिमेन अंडर नेगेटिव प्रेशर। मिस्टर चक्रवर्ती, आपके कमेंट्स? क्योंकि उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ रिवाइवल, कुछ ग्रीन शूट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्रीन शूट्स इस एरिया में क्यों नहीं दिख रहे हैं, और दैट इज इन नेगेटिव टेरिटरी कैपिटल गुड्स सर। Yeah, I think that it's been a negative territory for the last sort of 5 to 6 months. I think it sort of just reflects the fact that, as I sort of previously mentioned, that private capex is sort of fairly weak, and and incrementally it shows that your investment cycle has not really picked up. And over time, perhaps once sort of demand picks up, once the public capex programs sort of start show up in the
start to crowd in private investments over a significant period of time, perhaps in the second half of this year, I think this component will remain fairly weak, and I think you'll see monthly contractions at least for the next 3 to 4 months. I would also assume, would want to look at the durables and non-durables breakup. I'd assume that most of the growth is really again come from consumer durable sector. That is true. Consumer durable 6% की ग्रोथ है और ये आंकड़ा सपोर्ट कर गया इस बार आईआईपी को. कंज्यूमर ड्यूरेबल पे 11.8% की ग्रोथ के मुकाबले 6% की ग्रोथ मंथ ऑन बेसिस पे, लेकिन फिर भी 6% की ग्रोथ ठीक है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के लिए. एक बार कॉर्पोरेट रिएक्शन भी ले लेते हैं. ओमकार हेरलेकर मेरे साथ इसमें मौजूद हैं, ओमकार स्पेशलिटी केमिकल्स के एमडी. मिस्टर ओमकार, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए. सर 1.2% की ग्रोथ है आईआईपी में, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -3.1% से 0.7% तक ही पहुंच पाए. डिमांड सिनेरियो कैसे देखते हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं आप और केमिकल सेक्टर इस समय काफी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स में. डिमांड सिचुएशन कैसी है सर इकोनॉमी में? डिमांड इज वेरी गुड. डिमांड काफी अच्छा है. इट्स ओनली अपना कॉम्पिटिटिविटी कितना है लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अभी काफी सारी कंपनियां अच्छी R&D बेस के ऊपर चल रही है और अच्छा खासा नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है. चाइना को काफी बीट करने की कोशिश चल रही है और काफी सारी कंपनियां चाइना के साथ काफी कॉम्पिटिटिव भी है चाइना के इसके एज कम्पेयर टू चाइना. तो काफी सारी लोकल कंपनियां ब्लूम अप हो रही है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, API सेक्टर में या पेट्रोकेमिकल सेक्टर में. काफी अच्छा चल रहा है सर. मिस्टर ओमकार, क्या कैपेक्स कर रहे हैं आप ही के सेक्टर को अगर टटोला जाए तो क्या कैपेक्स करने को तैयार है? सरकार की जो नीतियां क्या वो सपोर्टिव है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े ही आईआईपी में डिसअपॉइंट करते हैं सर. नहीं, डिसअपॉइंटेड तो नहीं है सर. देखो कैसा है, 10 to 12% की तो ग्रोथ तो सभी कंपनियां पोस्ट कर रही है वैसी मोटा मोटी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की बात करने जाए तो. और अगर समझो कैपेक्स है, समझो आपके पास अगर कॉन्क्रीट एजेंडा है, आपके पास कॉन्क्रीट ऑर्डर बुक है, तो डेफिनेटली कैपेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है सर. ऐसा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती. चलिए, आने वाले कुछ तिमाहियों के लिए या फिर आने वाले एक फिस्कल के लिए अगर मैं आपका आउटलुक पूछूं तो आप संतुष्ट हैं सरकारी पॉलिसीज से? सरकार ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा लेने के लिए, क्या वो ठीक है और आप मानते हैं कि आने वाले समय के लिए ग्रोथ कैरी होगी केमिकल सेक्टर में एटलीस्ट? 100% सरकार ने जो भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जो भी स्टेप्स लिए हुए हैं, वो रियली बहुत कंड्यूसिव है. It is really, surprising to see that government is taking such a good initiative to propagate the manufacturing sector. मुझे काफी सारी उम्मीद है कि स्पेशलिटी केमिकल्स और जनरल पेट्रोकेमिकल्स भी काफी अच्छा अपट्रेंड इन रेवेन्यू में देखने मिलेगा. मिस्टर ओमकार, आप फॉरेन इन्वेस्टर से भी संपर्क में रहते हैं, तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इंडिया को कैसे देख रहे हैं और क्या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रकम इन्फ्यूज करने के लिए तैयार हैं, जो भी पॉलिसी जो भी स्टेप सरकार ने उठाए उसको देखते हुए? डेफिनेटली अभी काफी सारी कंपनियों में देखा तो FIS या FDIs का काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है. तो एग्जैक्टली क्वांटिफिकेशन तो बता नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स काफी सारी FIS इन्वेस्ट करना शुरू की हुई है ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से बढ़ेगा भी है इनफैक्ट इन द डेज टू कम. चलिए ओमकार जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और आईआईपी आंकड़ों पे अपना रिएक्शन देने के लिए. लेकिन मिस्टर चक्रवर्ती, वही बात हो रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो आपने बात की उसमें 6% की ग्रोथ है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आने वाले समय के लिए क्या डिमांड सिनेरियो, क्या कुछ ऐसे ट्रिगर्स है आने वाले महीने में कि हम मान लें कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की ग्रोथ अभी भी आउट परफॉर्म करेगी और आईआईपी में यही आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे? Yeah, I think that's going to be the case, because I think you have it's really a function of leverage spending, which is because of RBI's easier policy that has sort of lifted retail credit, retail demand, and I think I think this will continue to remain the main driver in the first half, and that will perhaps be supplemented by improvement in the non-durables component as rural demand picks up, and perhaps a lesser degree of contraction in the capital goods component. So that's how we look at the IIP going forward. मिस्टर हरियर, अब स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं, स्पेशली ऑटो सेक्टर और कैपिटल गुड सेक्टर्स के शेयर्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, आई थिंक फॉर अ मोमेंट आप इन आईआईपी नंबर्स को भूल जाइए. आई थिंक ब्रॉड जहाँ तक मेरा ख्याल है, ट्रेंड ये है कि डेफिनेटली डिमांड में एक पिकअप दिखाई दे रहा है. हमने रिसेंटली टाटा मोटर्स के नंबर्स देखे थे, आई थिंक 21% ग्रोथ दिखा रहा है ऑन ऑल इंडिया बेसिस. मारुति के नंबर्स देखे थे, काफ़ी अट्रैक्टिव थे. आई थिंक लेलैंड वाज प्रॉबेबली अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट आई थिंक जितने भी ऑटो कंपनीज के नंबर्स आए, टू व्हीलर्स, ओवरऑल आई थिंक जो कंज्यूमर डिमांड है, जहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिमांड है, दैट इन माई व्यू हैज बीन वेरी गुड.
शायद एक निराशा वाली बात यह होगी कि क्योंकि इन्फ्लेशन 5.8% के आसपास रहा है और आरबीआई के गवर्नर ने पहले भी कहा है कि इफ इन्फ्लेशन इज क्लोजर टू 6% वी विल नॉट वेंचर इनटू अ रेट कट, तो शायद से जो अगस्त 9 की पॉलिसी है मेरे ख्याल से इसमें भी मुझे रेट कट डाउटफुल लग रहा है। तो दैट आई थिंक कुड बी अ नेगेटिव बिकॉज ऑटो कंपनीज और रियल एस्टेट कंपनीज के लिए एक रेट कट काफी पॉजिटिव होता है। तो मेरे ख्याल से मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन नंबर रेट कट शायद अगस्त 9 के पॉलिसी में नहीं होगा। मिस्टर चक्रवर्ती, मेटल माइनिंग जो सेगमेंट है वहाँ पर इस बार भी कोई इतने इनकरेजिंग आंकड़े नहीं है। 1.3% की ग्रोथ देखने को मिली है, 1.4% पिछले महीने देखने को मिली थी। इतनी लैकलस्टर ग्रोथ है माइनिंग सेक्टर पे। और ग्लोबल अगर पर्सपेक्टिव से भी देखें तो मेटल्स एज ए कॉमोडिटी ही अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड क्या देखते हैं? क्या मेटल्स पे निचले स्तरों से प्राइसेस पे कुछ रिकवरी होगी और क्या मेटल माइनिंग जो सेक्टर है वो रिवाइव हो सकता है? So I think the way we see it with global commodity prices, including the industrial such as metals and crude and so on, is that commodity prices have really bottomed out. I think there has been a cutback in supply in across the globe, and commodity prices have bottomed out. A substantial uptrend is unlikely, mainly because demand is still fairly weak. If you look at on a global scale, China is the main sort of driver for this sector, and the demand from there is going to remain fairly weak. So I don't think it is going to be an outperforming sector. Perhaps it will continue to sort of grow around this 1 to 2.5%, but most certainly a substantial improvement is sort of unlikely given the kind of demand supply scenario, particularly demand which is fairly modest. मिस्टर हरिया, मेटल माइनिंग स्टॉक्स ही शेयर बाजार पे जोरदार पकड़ बनाए और आज के सत्र में भी देखिए तो वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स बज कर रहे थे मार्केट में, नैल्को आउट परफॉर्म कर रहा था। इस सेक्टर पे व्यू क्या है? उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि रिजल्ट सीजन ऑन है, क्या बहुत अच्छे आंकड़े कंपनियां पेश कर सकते हैं या फिर ये जस्ट लिक्विडिटी रैली है जो मेटल स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से जो ओवरऑल मेटल एंड माइनिंग स्पेस है उसमें लगभग टू कैटेगरीज हो रहे हैं। एक तो स्टील है जहाँ पे अभी भी सेंटिमेंट नेगेटिव है फॉर द सिंपल रीजन दैट ग्लोबली अभी भी ओवर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और हम लोग सब जानते हैं कि 50% ऑफ द वर्ल्ड कैपेसिटी ऑफ स्टील इज इन चाइना। और जब तक आई थिंक चाइना में एक स्लो डाउन है, मैं मानता हूँ कि ग्लोबली देयर विल बी अ ग्लट ऑफ स्टील और जब तक ग्लट रहेगा प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो आई थिंक दैट इज नेगेटिव फॉर स्टील कंपनीज। जहाँ तक नॉन स्टील कंपनीज जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे कॉपर है, तो कंपनीज लाइक वेदांता, कंपनीज लाइक हिंदुस्तान जिंक, प्रोबेबली हिंडाल्को, आई थिंक यहाँ पे शायद अब भी थोड़ा मुझे प्राइस एक्शन की उम्मीद की जा रही है। तो आई थिंक दीज स्टॉक्स आर स्टिल लुकिंग पॉजिटिव, बट स्टील मेरे ख्याल से वी आर स्टिल नेगेटिव ऑन दो स्टॉक्स। मिस्टर चक्रवर्ती, आखिरी कमेंट्स चाहूंगा क्योंकि अभी हम ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, आईआईपी की बात कर रहे थे। एक आंकड़ा और आईएमडी की तरफ से अभी आ गया है कि इंडिया में जुलाई 12 तक की अगर रेनफॉल बात करें तो 31% अबव नॉर्मल है। तो यानी कि मानसून अब पिकअप होना शुरू हो गया और उसका कहीं ना कहीं असर अर्थव्यवस्था पे ज़रूर पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं मानसून गोइंग फॉरवर्ड और उसका असर जो है वो ग्लोबल इनफैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पे उसको कैसे देखने को मिल सकता है? 31% अबव नॉर्मल यानी कि पिकअप है, तो कहीं ना कहीं डिमांड सिनेरियो इंप्रूव हो सकता है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। Yes, it certainly does sort of, it is a positive for both growth and inflation because I think the incremental driver on inflation is really food, and it could perhaps with a lag maybe more so become visible in the second half if food inflation moderates because of the pickup improvement in the monsoons and better water retention. The second thing is of course growth front. Rural demand has been fairly weak for the last 2 years, and it could be a boost, not just the monsoons but the government's sort of measures that have been taken. Rural wages could pick up at the margin, and so it could be both a growth boost and perhaps an inflation, keep inflation in check and push it lower over the course of the year. मिस्टर चक्रवर्ती, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और आईआईपी आंकड़ों पे, महंगाई दर के आंकड़ों पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हरिहर साहब, अभी जिस तरीके से इस बार आईआईपी फिगर्स कोट हुए हैं, कैपिटल गुड्स ने डिसअपॉइंट किया है। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स जिनके पास भी पोर्टफोलियो में हो, क्या उनको इन आईआईपी आंकड़ों से कुछ चिंता करनी चाहिए या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स को क्या मौजूदा स्तरों पर खरीद के चल सकते हैं? आपकी राय?
हम वैसे भी कैपिटल गुड्स पे थोड़े कॉशियस रहे हैं और कंज्यूमर स्टॉक ड्यूरेबल्स पे खास करके हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। इसके बावजूद कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर कोटिंग एट फैली रिच वैल्यूएशंस, हम मानते हैं कि आगे जाके ग्रोथ और आरओई इन्हीं स्टॉक से आएगा। तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि द टाइम इज राइप फॉर यू टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन कैपिटल गुड्स एंड इंक्रीज योर पोर्टफोलियो शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एक सबड्यूड ग्रोथ इस बार आईपी आंकड़ों पे देखने को मिली हरियर साहब, और वैसे भी हम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जूझ रहे हैं। अभी ब्रेक्जिट का जो भी फैसला हुआ है उसका असर तो वर्ल्ड मार्केट से पड़ गया, लेकिन निचले से एक रिकवरी है। 8500 के स्तर पे है बाजार। आईपी में एक सबड्यूड ग्रोथ नेक्स्ट बिग ट्रिगर मार्केट के लिए क्या समझते हैं आप सर? देखिए, मैं मानता हूं कि अभी जो रैली हमने मार्केट में देखा है इसका कारण काफी फंडामेंटल है। दुनिया भर में लगभग $11 ट्रिलियन के बॉन्ड्स ऐसे हैं जो नेगेटिव यील्ड्स दे रहे हैं, और इतना सारा नेगेटिव यील्ड वाले बॉन्ड्स में दुनिया का मार्केट नहीं चल सकता। तो आई थिंक अभी क्या हो रहा है कि जो रिस्क ऑफ की बात हो रहा था वो रिस्क ऑन की बात हो रही है। लोग बाकी डेवलप्ड मार्केट से पैसा निकाल के धीरे धीरे करके इमर्जिंग मार्केट में डाल रहे हैं जहाँ रिटर्न्स हायर है। तो इसके कारण आई थिंक फ्लोज जारी रहेगा, और मैं मानता हूँ कि देयर में बी करेक्शंस इन बिटवीन, बट economies like India will be in demand. So we are very bullish on India. Corrections हो सकते हैं, but use every correction to buy into India. राइट हरियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आईपी फिगर्स पे और साथ साथ महंगाई दर पे अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्की ग्रोथ जरूर देखने को मिली, लेकिन एक सबड्यूड ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। आईपी आंकड़ा है 1.2%।